Assalamualaikum everybody. You have my voice. और today the topic to study. Obviously कल वाली बात तो मैं पूछूंगी नहीं थी किससे क्या इस कल वाले लेक्चर में से प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई because I guess you guys know more than what I know and more to that is the Asta lecture. Today what we are going to study again is one of the components of cell. But it is again very important because you're going to need it for the further study of all your transport during metabolism and exchange. So this phenomena is based on transport, types of transport. We'll jump right away on this topic, and I have composed a smaller version of the whole thing. Let's see how much you can cope up with this और फिर इसकी मज़ीद डिटेलिंग में जाते हैं इस रिव्यू में. As you know, type of transport from the previous knowledge that you have, that it is being divided into two simpler form. इसके आगे क्या क्या है वो भी हम स्टडी करते रहेंगे. One of them is passive or simple transport, ठीक है, or diffusion, ठीक है. It depends on the following factor. Obviously, concentration gradient. The solute moves from higher to the lower concentration. यही बात कल हो रही थी for the exchange of solute and a solvent. जब हम ion exchange की बात कर रहे थे, जब हम body compartment fluid exchange की बात कर रहे थे. So the electric potential solutes move towards the solution that has the more positive charge or that has the opposite charge. The inside of cell usually has a negative charge. Normally action potential हमने आपको पता है कि उसकी क्या statistics होती है. Hydrostatic pressure gradient, अब इसमें अंदर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया जिस चीज़ों पे ये डिपेंड करता है. ये हेडिंग्स हैं बेटा आपकी. या फिर भी आप लोगों को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, उसके बाद आपके इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट पे, और उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग विच एक्चुअली मैटर्स अबाउट इट, दैट इज your hydrostatic pressure gradient. Increase of pressure increases the rate of force of collision between the molecules. Hydrostatic pressure, it is the phenomena on which, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको HPLC पढ़ाई थी और हम पेपर से HPLC के अंदर या क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम लोगों ने कहा था कि ये pressure gradient is the force to drive this diffusion. और इन सारी चीज़ों के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है कोफिशिएंट ऑफ या परमिएबिलिटी कोफिशिएंट, विच इज इक्वल टू द डिफ्यूजन कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, तो परमिएबिलिटी कौन है. अब इसमें डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या है. डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय टाइम. दिस इज अगेन सिमिलर टू द एग्जांपल ऑफ chromatography that I have given you. जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है ये एक्सप्लेन करता है कि अगर आपका सरफेस एरिया जितना बड़ा हो उतनी अकोमोडेशन क्रिएट कर सके. फॉर एग्जांपल इसकी सीधी सी एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ. इफ यू हैव 50 students in a class with 50 seats, they will immediately find their seats and sit, and it is the sitting process is very accommodative. On the other hand, you have 50 students and have 25 seats to sit. तो पहले क्या होगा, पहले half set will sit, then when they get up, the next half will sit. So the overall जो आपकी efficiency होगी to make sitting of 50 students becomes double in time as compared कि जब आपके पास 50 seats हैं. तो यही वाली बात है कि if you increase the area for the diffusion, you can increase the rate of diffusion, and so it is divided by unit time. ठीक है, so this is the diffusion coefficient. And if a membrane is to study इस membrane की permeability कितनी ज़्यादा है, so that permeability should be divided by
or it should be extracted by diffusion coefficient divided by thickness of membrane. अब वो membrane कितनी thick है, यानी उसमें से गुजरना कितना आसान है या नहीं, right? ये तो simple सी बात होगी. उसके बाद हम आगे चलते हैं. The next thing that you need to know वो है आपका passive diffusion के बाद हम आगे facilitated diffusion. ठीक है जी. Facilitated diffusion, it is a similar to passive diffusion in the solutes, moves along the concentration gradient, but differs from the passive diffusion in that requires a carrier or transporter. बेटा देख ले इस बात को, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और जो पैसिव डिफ्यूजन है इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टर ऐड हो जाता है. Some of the students they keep on telling that it is an energy dependent mechanism. Transporter की अपनी क्या stats है, that is not the point of concern. When it is being asked the difference between a simple diffusion and a facilitated diffusion, you should always write the presence of a transporter. ठीक है जी. Hence the rate of diffusion is faster due to these transporters. इसमें एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि बहुत सी इनहिबिटर्स हमारे इस तरह के ट्रांसपोर्टर्स पे आके एक्ट करते हैं. ठीक है, जब इस तरह के ट्रांसपोर्टर्स पे आके एक्ट करते हैं, जिस तरह की कल की मैंने एक एग्जांपल दी थी साइक्लिक एएमपी इन ट्यूबुलर एपिथेलियम, वो डिफ्यूजन को रोकता है. वहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट की नहीं बात, डिफ्यूजन. तो ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं ये जो कि कैरियर प्रोटीन्स को इनहिबिट करते हैं. ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन्स की अलग अलग सिग्निफिकेंस है और इनकी प्रेजेंस लोकेशन अलग अलग जगह पर. द प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी एंड कैन बी ऑपरेटेड बायडायरेक्शनली. बायडायरेक्शनली मतलब क्या कि इफ देयर इज एन इनसाइड कंपार्टमेंट एंड देयर इज एन आउटसाइड कंपार्टमेंट, so these carrier proteins or these carrier transporters, they can work in both direction, inside to outside or the other way around, outside to inside. ठीक है जी. Mechanism of facilitated diffusion is explained by the Ping-Pong model, that is D Foucault is absorbed from the intestine by the facilitated diffusion. ठीक है जी. Raxo's D presentation of the Foucault अगर आपके intestine से absorb होती है तो that is a mechanism of facilitated diffusion. ठीक है, और बेटा ये याद रखना, दिस इज दी एमसीक्यू कमिंग अहेड ऑफ यू. ठीक है, कि स्टेट एन एग्जांपल ऑफ facilitated diffusion in the intestine, राइट. ये आपके facilitated diffusion है. आगे चलते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Active transport, there is the model of this transport has been changed from one side to the other one. अभी तक हम विदाउट एनर्जी मॉडल्स की बात कर रहे थे, एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एनर्जी मॉडल्स. बट गिवन दैट इन माइंड कि बेटा एनर्जी डिपेंडेंट मॉडल्स, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन मैं कहाँ पे क्रिएट करूँगा और वो डिफरेंशिएशन कैसी होगी. मेक श्योर यू रिमेंबर वन थिंग, दैट a smaller molecule to transport doesn't requires any energy. इसकी एक significant example ये दे सकता हूँ कि बेटा अगर आपको मैं एक हल्का सा पेपर थिन वेट पकड़ा दूँ और मैं कहूँ इसको उधर सीधे रख दे, तो मे बी यू हार्डली रिक्वायर टू बर्न एनी एटीपी टू डू दैट वेट, आज कंपेयर्ड कि मैं आपको 10 किलो या 20 किलो का वजन पकड़ा दूँ, कहूँ पुट इट फ्रॉम हियर टू देयर, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो from this point of view, this active transport which requires energy is always dealing with the bigger size of the molecule. ठीक हो गया. ये तो बॉडी की फ्रैक्शनेशन है about the types of transport and all that. ठीक है. अब इसमें देखते हैं active transport it occurs against the concentration gradient. There is another thing about this. एक तो size of molecule भी हो गया और दूसरा ये हो गया sometimes you need to run things against the concentration gradient and electric gradient. So obviously, as we discussed earlier, we have two types of the gradients. One of them is concentration, the other one the electric charge. Hence, it requires energy. 40% of the total energy required in a cell is utilized for the active transport system. It requires mediation of the specific carrier and transport protein. Active transport system is classified as
अच्छा जी, अब इसके कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? एक तो एनर्जी ऑब्वियसली, दूसरा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्वेश्चन कम्स सिग्निफिकेंस, apparatus एंड इंडिकेशन। सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि साइज और concentration, against the concentration and in a heavier size of molecules. इसके अंदर इसके apparatus में क्या है? ATP and again it requires a carriers, इसके पास गाड़ियां होती हैं to transport। ठीक है, अब इसकी सब क्लासिफिकेशन क्या है? यूनिपोर्ट सिस्टम, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन a various cells. Why uniport system? We have GLUT 1, 2, 3 and 4 पढ़े होंगे आपने हम लोगों से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड अपटेक के अंदर। GLUT system is a specified transporter for the glucose, right? So जब आप GLUT system की बात करते हैं तो they are uniport. They are meant to transport glucose. Other than few exceptions, but this is the example of the uniports because there's and basically specific to their सवारी। ठीक है ना, मतलब एक गाड़ी है जिसने सिर्फ VIPs को बिठाना है और उसमें किसी गरीब बंदे को नहीं बिठाना, तो those are uniports, right? Other than that, core transport system, D-glucose, D-galactose, L-amino acids are transported into the cell by sodium dependent core transport system. ठीक है जी, अब these core transport system they mean like a local sawari. ठीक है, they can transport anybody or any of these cells given in as an example, but dependent that they depend on a sodium potassium action potential membrane system. ठीक है, but that also specifies that sodium actually transports these molecules by generating an relative charge upon them. So ये attraction basis transport चल रही है। So to understand the matter of the fact is this कि जिस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होगा, जिस तरह के हम लोगों ने उस दिन बताया था कि सेलुलोज इनर्ट मेम्ब्रेन, इसीलिए अगर आपको पता हो तो हम सेलुलोज कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रेशर कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि सेलुलोज आपके इंटेस्टाइन से ऑपोजिट वे ट्रांसपोर्ट नहीं होता, दैट स्टेज इन योर इंटेस्टाइन and obviously that increases the osmolarity and attracts fluid more inside your gut, making or generating a softer and softer stool, वो constipated hard stool को खत्म करता है। So this is one of the core transport system के अंदर जो आपका है, इसकी significance report। अच्छा जी, अब कोर ट्रांसपोर्टर्स में भी एक सिम पोर्ट सिस्टम है और एक एंटी पोर्ट सिस्टम, बड़ा इजी है। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए साथ साथ इसके ऊपर वेरी कंसंट्रेशन होता है। हाँ, that was it। अच्छा, अब आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सिम पोर्ट एंड एंटी पोर्ट। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क दैट? ऐसे पूछ लें, अदरवाइज वी आर जंपिंग इन। ठीक है, यू आर ओपन ऑन द चैट सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट सिम पोर्ट एंड एंटी पोर्ट। ठीक हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज बड़ा होगा, मैक्रो से साइज पता चलता है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, हार्मोन्स। अब देखो, अपना अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, हम फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट फॉर्म स्ट्रक्चर, जैसे ग्लोबिन्स हैं, जैसे पूरे के पूरे हार्मोन्स हैं, इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है,
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL जो कि काइलोमाइक्रॉन्स है, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जो कि सम ऑफ देम दे कैन फॉर्मुलेट एंड टेक द फिजिकल शेप एज वेल, जैसे एथियोसिस में पता लगता है, जैसे कि हम ब्लड देख सकते हैं अपने आप, ठीक है। तो ये इतना बड़ा साइज है। अब सेलुलर लेवल से आप देखें, आप इतने बड़े, तो इनकी various takes place across the membrane in the two independent mechanisms. अब इनको भी ट्रांसपोर्ट करना है, इनको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली एक सेल है, सेल के अंदर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर उसके डिफरेंट प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं जो कि अभी तक एज एन एक्टिव ट्रांसपोर्टर, एज ए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर्स दे वर वर्किंग। बेटा ऑडियो मेरा क्लियर क्लियर है या नहीं है? आयशा बेटा मेरी साइड से तो क्लियर है, बाकी अगर कोई once again if you see let me check out anything better हो गया, अब कुछ बेहतर हुआ तो क्या सब बेहतर ही है, ठीक है। आयशा प्लीज चेक योर साइड, बेटा मेरे साइड से तो साथ ही, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द जब आप वो ट्रांसपोर्टर्स की बात कर रहे हैं तो वो कंपोनेंट्स होते हैं एक सेल का, और उसकी सेल के अंदर, उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक कंपोनेंट होता है, प्रोटीन होता है जो कि को ट्रांसपोर्टर के तौर पर बात है। जब आप पूरे का पूरा स्ट्रक्चर की ट्रांसपोर्ट की बात करें, जैसे कि ब्लड की, आप हीमोग्लोबिन की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, जब इनके ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली एक सेल का कंपोनेंट कैसे पूरा अपने से भी कई गुना बड़ी चीज को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो सेल गोज इनसाइड, तो इनके लिए पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स हमारे क्या होते हैं, वो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि इनको इन बिगर फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड दोस ऑर्गेनेल्स दे वर्क अकॉर्डिंगली विद द टू undergiven processes, exocytosis और endocytosis। इससे पहले कि हम ऑर्गेनेल्स की बात करें, सेल can't really properly क्या चल रहा है, just give me a minute, let me check it out। बेटा जी आप देखें, anything better than the previous time? अजीम, आयशा, आवाज क्लियर है? डिस्टॉर्शन, सीरियसली मैं अपने टू द बेस्ट, ठीक आ रही है आवाज इतनी? बेटा आई डिड एवरीथिंग टू माय सेल्फ, जो कि मैं अगर कहते हो तो, अगर इट इज नॉट एक्चुअली हेरेबल तो मैं दोबारा से सेशन रीजॉइन कर दूँ। चलो बस फिर स्टिल आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों के साथ शायद फिर भी इफ यू फील लाइक डू लेट मी, मैं दोबारा से एक मीटिंग ज्वाइन कर लूँ, शायद बेहतर हो जाए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, exocytosis and endocytosis. These are the two processes in which, yeah, by which we transport macromolecules or molecules bigger than the components of the cell membrane to be transported from here and there. ठीक है जी। अब इसके अंदर सबसे पहले exocytosis. Most of the cells release macromolecules to the exterior by the process of exocytosis. Beta, exocytosis is a very important, clinically very important pathway to study. It is a very complex pathway. यहाँ पे आपको इसकी इंट्रोडक्शन हो रही है, बाद में आपकी फार्माकोलॉजी में, पैथोलॉजी में आप लोगों की सर खा जाएगा ये एक्सोसाइटोसिस, बिकॉज जितनी आपकी एंडोक्राइनोलॉजी है और जितनी भी आपकी मेडिसिनल
वो ट्रांसपोर्ट है दैट इज ड्यू टू दिस, और फिर जितनी आपकी इम्यूनोलॉजी है पैथोलॉजी में आप पढ़ेंगे दैट इज अगेन is consisting of this pathway. So the process also involves a membrane remodeling. सबसे पहले पॉइंट इसका नोट करना है, मेम्ब्रेन रीमॉडलिंग होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन रीमॉडलिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आगे जाता हूँ। जब कोई कंपोनेंट सेल का या सेल के बाहर से इंस्टेड ऑफ passing through the membrane joins the membrane structure and increase or decrease the size or shape of the membrane, that is called membrane remodeling. ठीक है जी, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। Normally different components they pass through the membrane, ठीक है, but those which become the part of the membrane, they that is called as remodeling, ठीक है। So the process of exocytosis involves membrane remodeling when the components synthesized in a Golgi apparatus are carried in a vesicles to the plasma membrane, right? तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस है, इसकी जो मशीनरी है, जो इसको जो ऑर्गेनली इसको अप्रीहेंड करती है, इसको सपोर्ट करती है, दैट इज योर गोल्जी एपरेटस, ठीक है। गोल्जी एपरेटस का ऑब्वियसली आपको अभी सेल कंपोनेंट्स पढ़े होंगे, अभी अभी सारा डिटेल पता होगा कि इसका कौन सा इंटीरियर एंड है, कौन सा पोस्टीरियर एंड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो उसको भी कभी मिस ना करें। The movement of vesicle is carried out by the cytoplasmic contractile element in the microtubule system, ठीक है जी। माइक्रोट्यूब्यूल सिस्टम अगेन इसी की रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी थी और गोल्जी एपरेटस के साथ साथ भी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने यही बात की थी, ये पार्ट्स आप सर ऑल्टरनेट के अंदर पढ़े होने चाहिए, अभी रिसेंटली दोबारा से रिवाइज भी हुआ है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, और जरूर रिवाइज किया, अगर मैंने नहीं आपको ये पढ़ाया तो इसीलिए मगर मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि इसको मिस ना कीजिएगा। और उनकी इस शेप ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से ये एक्सोसाइटोसिस कैरी आउट होता है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं एक्सोसाइटोसिस के मैकेनिज्म में। The inner membrane of a vesicle fuses to the outer membrane, plasma membrane, while cytoplasmic side of a vesicle fuses to the cytoplasmic side of a plasma membrane. अब इस पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता था कि जब हमने आपको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि देयर इज अ हाइड्रोफोबिक साइट एंड देयर इज अ हाइड्रोफिलिक साइट। फिर उसके बाद आपको सेल सिग्नलिंग पढ़ाई थी, ठीक है, इंटर सेल सिग्नलिंग, जिसमें मैंने आपको काफ़ी दफ़ा मेरे मुंह से सुना होगा कि सेकेंडरी मैसेंजर्स, जिसमें अभी कल ही मिसाल दी थी साइक्लिक AMP। जो हाइड्रोफिलिक साइड होती है, ठीक है, उसकी जो इनर साइड होगी, जो कि सेल के अपने अंदर या फेसिंग टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल होती है, उसके अंदर आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स की एंकरिंग होती है, यानी पार्किंग लॉट होता है जहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर्स पार्क हुए होते हैं। वो जैक स्टैट पाथवे है, अगर आपको उसने पढ़ाया ये आपको अंदाजा। तो जैक स्टैट रिसेप्टर्स जो आपके होते हैं वो इनर साइड पे लगे होते हैं, और जो आउटर साइड पे होते हैं वहाँ पे आपकी जो एंटीजन रिसेप्टर्स लगे होते हैं, इनके अंदर स्ट्रक्चरली बड़ा डिफरेंस होता है। तो जब ये वेसिकल्स आपके गोल्जी एपरेटस से डिटैच होते हैं एंड दे माइग्रेट टुवर्ड्स योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसकी रीमॉडलिंग की कुछ फिनोमिनास की प्रिसीजन मेंटेन रहती है, वरना कुछ और डिजीजेस हो जाती हैं जिसकी आगे क्लिनिकल एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको, जिसमें से जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है। अगर ये मॉडलिंग सही नहीं होगी तो डिजीज कॉज हो जाएगी। और मॉडलिंग क्या होती है कि जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट वाली साइड है वो हमेशा इनसाइड रहती है, जो एंटीजन रिसेप्टर साइड है वो हमेशा आउटसाइड रहती है, और जो हाइड्रोफोबिक साइड है वो इन बिटवीन रहती है, यानी इट इनकॉर्पोरेट्स द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कंप्लीटली, उसको डिविएट नहीं करता ये जो आपका मेम्ब्रेन रिमॉडलिंग, ठीक हो गया। The next thing that you need to know, the content of the vesicles are externalized, मतलब
इसकी यूनियन का मेथड क्या होता है कि जो इसके मेम्ब्रेन के आउटसाइड वाला जो पोर्शन होता है वो वेसिकल के इनसाइड वाला होता है। तो जिस वक्त फ्यूजन हो रही होती है तो वेसिकल के इनसाइड वाली मेम्ब्रेन फर्स्ट जॉइंस टुवर्ड्स द और विद द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन वाली लेयर के साथ, और फिर जो वेसिकल की इन आउटसाइड वाली मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड वाली मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइन करती है या लेयर के साथ ज्वाइन करती है। यू अंडरस्टैंड? इट इज वाइस वर्सा। सो इन दिस मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग यानी क्रॉस बॉन्डिंग के अंदर ये जो क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होता है, इफ यू इमेजिन दैट इन योर माइंड, तो ऑटोमेटिकली व्हाट इज इनसाइड द वेसिकल नाउ इज कंसिडर्ड टू बी द आउटसाइड ऑफ द सेल, राइट? ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स पिनोसाइटोसिस बिकॉज it is a reversal bonding, so it is called a reverse pinocytosis. The process includes a local and transient change in a calcium ion concentration which triggers exocytosis. अच्छा जी, one of the ionic components of this transport is a calcium. So कैलमॉडलिन मॉडल कहते हैं इसको। अगर आपने कभी पढ़ा होगा कैलमॉडलिन मॉडल, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पढ़ा होगा। यस, कैलमॉडलिन मॉडल आपने पढ़ा होगा जब आपने प्रोटीन इंजेक्शन यानी प्रोटीन की डिग्रेडेशन पढ़ी होगी थ्रू इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड वेसल। वहाँ पे सोडियम सिंपोर्ट एंड कैलमॉडलिन मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो दिस इज इन द इंटेस्टाइन, ये इसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। और ये दैट इज कैल्शियम जनरेटेड और ट्रिगर्ड एक्सोसाइटोसिस, ठीक हो गया। दिस इज एक्सोसाइटोसिस। लेट्स गो अहेड ऑफ दिस। टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स रिलीज्ड बाय एक्सोसाइटोसिस। अच्छा जी, अब दिस इज व्हाट वी नीड टू नो एज वेल कि कौन से मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं जो कि exocytosis से release होते हैं। One, they all fall into the three categories. They can attach to the cell surface and become a peripheral protein, for example, antigen. मैंने कहा था ना कि आपकी एंटीजन एंटीबॉडी, तो एंटीजेनिक साइड आपकी सेल के बाहर होती है, तो वो वाले प्रोटीन्स या वो वाले कंपोनेंट्स इस ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनके पास ये ऑप्शन होती है कि जब वो सेल मेम्ब्रेन के ऑपोजिट साइड पे आएंगे यानी सेल मेम्ब्रेन के इनर आउटसाइड पे आएंगे, तो दे कैन एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ एंटीजन रिसेप्टर साइट, एंटीजन एंटीबॉडी को बना सके। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपका सेल का जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी एक्सोसाइटोसिस के ऊपर बेस कर दिया। पहली चीज, they can become the part of extracellular matrix or collagen, for example GAGs, ठीक है। मैंने बेटा GAGs क्लास में पढ़ाई थी, आप लोगों में से जितने लोग आप उसमें नए हैं, तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब आपने सिंथेसिस ऑफ कोलेजन की बात की थी तो हमने कहा था कि प्रो कोलेजन में कन्वर्ट होके सेल से बाहर आ जाता है, और जब सेल से बाहर आता है तो उसके जो ओपन एंड्स हैं वो ट्रिम डाउन होके कंप्लीट कोलेजन का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जो प्रो कोलेजन और प्रो कोलेजन की कन्वर्जन थी, अगर याद हो तो उस वक्त भी ये पढ़ाया था कि प्रो कोलेजन रिलीज के लिए तैयार हो जाता है और वो जैसे ही वेसिकल्स के अंदर पैक होता है तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट उसके ये साइड चेन्स लॉक होती हैं, उसकी अमाइड एंड्स लॉक हो जाते हैं और वो प्रो से प्रो कोलेजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट डिफरेंस एक्चुअली बीन लेड हियर, ठीक है ना। आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट बनने के लिए आपके एक्सोसाइटोसिस के दौरान
कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीलिटिक जो कि उन पे एक्ट कर सकें. सो दोज टाइप्स ऑफ प्रोटीन विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू एक्सोसाइटोसिस जिनके ऊपर आपके प्रोटीजेस एक्ट कर सकें. ठीक हो गया. तीसरी कौन सी चीज इसमें से ट्रांसपोर्ट हो सकती है वो हार्मोन लाइक इंसुलिन, पैराथॉर्मोन, ठीक है ना, पीटीएच, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन इसका पूरा नाम होगा, ठीक है, एंड कैटाकोलामाइंस, ये जो आपके न्यूरोसेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, all packed in granules processed within the cell and released upon appropriate stimuli. ठीक है ना. Again, एंटीजन एंटीबॉडी रिसेप्टर के ऊपर आपके हार्मोन्स का रिलीज भी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है. तो बेटा आपका अगर एंडोक्राइन सिस्टम आप पढ़ेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी वैसे तो बीडीएस के कोर्स में नहीं है, मगर आप अगर पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, तो उसमें एंडोक्राइन थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सोसाइटोसिस, राइट. सो दीज आर द थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ एक्सोसाइटोसिस. लेट्स गो अहेड द अदर वे अराउंड. एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के ऊपर कल बड़ी बहस हुई हमारी. एक्चुअली हमारी कल ईसीएफ और आईसीएफ के ऊपर हुई थी, मगर एंडोसाइटोसिस इज द पार्ट ऑफ इट, राइट. All the eukaryotes cells are continuously ingesting parts of their plasma membrane. ठीक है जी. सारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट्स को कंटिन्यूसली डिग्रेड करके अपग्रेड कर लेते हैं, यानी वेयर एंड टेयर चल रहा होता है. ठीक है. अब एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स आर फॉर्म्ड when segments of the plasma membrane invaginates enclosing a minute volume of extracellular fluid and its content. बेटा जिस तरह मैंने आपको एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्रॉस या आपको क्रॉस लिंकिंग पढ़ाई थी, क्रॉस लिंकिंग अभी एक्सप्लेन की थी कि क्रॉस यानी ऑपोजिट जो मेम्ब्रेन होती है दैट बाइंड्स टू द ऑपोजिट वन, यानी जो इनर मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन लेयर के साथ बाइंड करेगी, जो आउटर मेम्ब्रेन लेयर है वो इनर में क्रॉस लिंकिंग. सिमिलरली यही काम जब एंडोसाइटोसिस हो रहा है और रीमॉडलिंग हो रही है आपके सेल मेम्ब्रेन की, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर एज वेल. In this process, obviously, जब आपका outside वाली layer of the membrane binds to the inner side, तो जो चीज उसके मुंह में आ रही है, engulf हो रही है, that goes inside the cell. So in this way, आपका कुछ extracellular fluid या जो भी material है extracellular, that becomes a part of your intracellular or the other way around, right? So this much was this, ठीक है. और the vesicles then pinches off as the fusion of a plasma membrane seals the neck of the vesicle at the original site of the invagination. ठीक हो गया. तो ये वही वाला प्रोसेस है जिस तरह का मैंने आपको एक्सोसाइटोसिस में पढ़ाया था. The fused vesicle with other membrane structures and transporters of its contents to the other cellular compartments. तो obviously वो पूरा एक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, उसके ऊपर उसके ट्रांसपोर्टर्स भी लगे हुए हैं, उसके ऊपर उसके एक साइड पे उसके सेकेंडरी मैसेजेस लगे हैं, दूसरी तरफ उसके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस लगे हैं. तो वो पूरा का पूरा अलॉन्ग विद द ईसीएफ वो एक पूरा पैकेट बन के वो आगे फर्दर डिग्रेडेशन के लिए मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. और वो किन कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यू मस्ट नो दैट आंसर बाय नाउ, बिकॉज दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द कंपोनेंट व्हिच हैज द मैक्सिमम प्रोटीएजेस इनसाइड ऑफ इट. ठीक है. नाउ as you have studied, you must know that. आगे चलते हैं. फैक्टर्स, जिस तरह के आपके एक्सोसाइटोसिस के लिए फैक्टर्स है, उसी तरह आपके एंडोसाइटोसिस के लिए भी फैक्टर है. Because both of them are the components of the same transport of the macromolecules, almost the same factors are required for both types of the transport. Endocytosis requires the following. Obviously, they are energy driven, usually required ATP from hydrolysis. Energy from
हाइड्रोलिसिस। बेटा हाइड्रोलिसिस का मकसद दो तरीकों से होगा। अगर यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में है, एटीपी ड्राइव्ड बाय द मीन्स ऑफ रिडक्शन, बाय मीन्स ऑफ ऑक्सीडेशन, बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, बाय मीन्स ऑफ deoxygenation, sorry, by means of बस ठीक है, अब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज in the presence of hydrogen and oxygen, any H2O water breaks down, or the presence of hydrogen and oxygen or presence of water breaks the bond। ठीक है, इसमें अक्सर क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस इज डन एज एन एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है कि जब भी एनर्जी रिएक्शन कंटिन्यू होता है तो उसके बाद वो बाहर आता है। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन and hydrolysis, they are the same terms। अगर आपके लिए ये MCQs में आते हैं या क्वेश्चंस में आते हैं, सो जब भी किसी भी मॉडल का ब्रेकडाउन हो जाए जिसमें से इधर H2O रिलीज हो रहा है या H2O इम्पार्ट हो रहा है, दैट इज हाइड्रोलिसिस, राइट। उसके बाद दी अदर को ट्रांसपोर्टर फैक्टर, जो कि आपका आयनिक को ट्रांसपोर्टर फैक्टर होगा, इसके अंदर भी कैल्शियम, इसको भी आप कल मॉडल कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट इन द सेल प्रॉपर्टी माइक्रोफिलामेंट सिस्टम। ठीक है जी, एनाटॉमी में आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो that is very important, I don't know it's part of your course or not, but a pathway called as ejaculatory pathway, ठीक है, that ejaculatory pathway is based on contractile element in the cell probably microfilament system। वो कैल्शियम ड्रिवन और फॉस्फोडाइएस्टरेज मॉडल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप ये डिटेल में स्टडी करते हैं। उसकी एग्जांपल आ जाती है एज एन एंडोसाइटोसिस, राइट। अच्छा जी, fate, most endocytotic vesicles fuse with the primary lysosomes, ठीक है, जो कि आपके प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कैरी करते हैं लाइसोसोम्स, टू फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स वो होते हैं जिनके साथ ये फ्यूज हो जाते हैं। कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, यानी हाइड्रेशन करते हैं। दे डाइजेस्ट द वेस्कुलर कंटेंट, liberating simple sugar amino acid which diffuse the vesicles to the reutilization in the plasma। so obviously ये जो जितने भी प्रोटियोलिटिक और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं आपके लाइसोसोम्स के अंदर, इनका और कोई काम नहीं होता अदर देन दैट कि ये जितने भी ये छोटे छोटे आपके वेसिकल्स आ रहे हैं, इनको फर्दर अपने बिल्डिंग स्टोन्स में कन्वर्ट करें, यानी इनको एक छोटा सा आपके पास दीवार आ गई, आपने उसको फौरन तोड़ के छोटी छोटी ईंटों में साफ सुथरा बना दिया ताकि नेक्स्ट दीवार बना सके। सो दिस इज द फेट ऑफ एंडोसाइटोसिस, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास सारी चीजें। लेट्स गो अहेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर एंड वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज बीइंग अ डॉक्टर। टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, इट इज ऑफ द टू टाइप्स, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। जो आपकी एक्सोसाइटोसिस थी, एक्सो, दैट वाज अ रिवर्स पिनोसाइटोसिस। जो आपकी एंडोसाइटोसिस है, दैट इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस, राइट। फेगोसाइटोसिस क्या है? जैसे कि आपके फेगोसाइट्स होते हैं, फेगोसाइटोसिस इज वन ऑफ देम। The engulfment of the large particle like viruses, bacteria, cell wrappers, and macrophages, and granulocytes, that is called phagocytosis. The extended pseudopodia and surrounds the particles and phagosomes, ठीक है। अब सूडोपोड्स बनते हैं। सूडोपोड्स क्या बनते हैं? जब एक फेगोसाइट होता है, वो जैसे कोई पैथोजन देखता है तो वो अपने दो हाथ बनाता है, रिमॉडलिंग करता है अपने मेम्ब्रेन की, उन दो हाथों को कहते हैं सूडोपोड्स।
वो क्या करते हैं, उसके इर्द गिर्द आके ना छप्पी डाल देते हैं और अंदर अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं और उसको अंदर ले लेते हैं। तो उसको जो इनगल्फमेंट है उसको फेगोसोम कहते हैं या फेगोसोमेसिस कहते हैं, और जो सूडोपोडिया होते हैं वो उन हाथों को बनने को कहते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फेगोसाइटोसिस। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है आजकल वी आर इफेक्टिव ऑफ द कोरोना वायरस। So coronavirus has a very little dealing with this these phagocytes. Actually, coronavirus इन phagocytes को इस वक्त बेवकूफ़ है। वो करता क्या है कि वो इनके पास आता है, इनको ट्रिगर करता है, और ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से जज्बाती होके, जिस तरह जज्बाती कौन होते हैं, हमारे गुज्जर होते हैं या भट्ट होते हैं, जो भी है, फौरन लड़ने के लिए तैयार होते हैं और वो जल्दी से अपने एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वायरस। अब होता क्या है, जो वायरस होता है उसने सिर्फ अपना एक एम्बिगुअस सा मॉडल वहाँ पे रिलीज किया हुआ आपके लंग्स के अंदर, आपके पेरिफेरल टिश्यू के अंदर। तो जैसे ही फेगोसोम्स अपने ऑटोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं, उसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम या आपका जो सेलुलर वो रेस्पिरेटरी टिश्यू है या लंग टिश्यू है, वो डिटोरिएट होता है, आपके एल्वोलाई डिटोरिएट होते हैं, एंड सडनली patient with the active coronavirus starts getting pneumonia and respiratory distress. ठीक हो गया? This is a very common related example. ठीक हो गया? उसके बाद these fuse with the lysosomes to form phagolysosomes. Obviously जैसे ही engulfment हो गई, इन्होंने अंदर ले लिया, तो अंदर जाकर फिर वही प्रोसेस है, लाइसोसोम्स अंदर फिर बैठे हैं। अगर फेगोसाइट्स आर सक्सेसफुल टू engulf the pathogen or the cell whatever जो उन्होंने एंडोसाइटोसिस करनी है, अगर वो अंदर गए तो लाइसोसोम्स के अंदर फिर हाइड्रोलिटिक एंड प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं, जो कि फिर से जो वेसिकल के अंदर चीज़ें आई हैं उनको बेसिक कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। The biomolecule, the biochemical mechanism is called respiratory burst, in which O2 consumption is increased and led to formation of superoxides. ठीक हो गया? अच्छा जी, सुपर ऑक्साइड भी इसी तरह बनते हैं, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या सुपर ऑक्साइड स्पीशीज। सुपर ऑक्साइड स्पीशीज बहुत अच्छा कॉमन क्वेश्चन है। वन ऑफ द सुपर ऑक्साइड स्पीशीज कौन सी है? H2O2। ठीक है, तो इसे कहते हैं। और वन ऑफ द इम्यून सिस्टम आपका है जो H2O2 अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से आजकल मार्केट में काफी शॉर्ट हो रहा है, बिकॉज इट इज एन एक्टिव एजेंट। सबसे अच्छा आपके स्पिरिट, आपके हैंड सैनिटाइजर से भी बेटा, अगर आप लोगों के पास H2O2 अवेलेबल है, तो दैट वर्क्स द बेस्ट सैनिटाइजर और a best defense against your coronavirus and anything, because that produces super oxide. But be careful to use that in a quantity, a measurable quantity on your skin, because it causes huge cracks on the skin sometimes. ठीक है, और मगर जब आपको पता है कि आप किसी कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ एक्सपोज हो गए, तो प्लीज डू यूज दैट. Macrophages are extremely active and may ingest 25% of their volume per hour. ठीक है ना, काफी एक्टिव भाग दौड़ करने वाले सेल्स हैं। और सोती भी हो, मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा। कुछ पता बातें पता चल रही हैं, कोई कोरोना वायरस की बात कर लो। आर यू देयर ऑल ऑफ यू? समझ आ रही है? कम ऑन प्लीज गिव मी सम फीडबैक। ऑलराइट मरियम, ठीक है, ओके थैंक यू अच्छा ठीक है, ऑल ऑफ यू बहुत अच्छा ठीक है। कोरोना वायरस के लिए आज अपने घर वालों को कहना H2O2 में है, ठीक है ना, और जरूर थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा बेटा, थैंक यू सैद, अमान, हसन और सामी मकसूद। Is it your complete name? Sami. ठीक हो गया? Yes. All right. No, I asked it because is it the complete name? Adnan. This is the nick that you are placed.
Anyways, चलो कमिंग बैक टू लेक्चर, मुझे पता चला मैं इंसानों के साथ बात कर रहा हूँ, मुझे कोई है दी अदर साइड, ऐसे लग रहा है कि मैं कंप्यूटर के साथ बात कर रहा हूँ। Anyways, अच्छा जी, कमिंग बैक टू द लेक्चर। हाँ, आगे चलते हैं। हमारे फेगोसाइटोसिस कंप्लीट हुई, अब हम पिनोसाइटोसिस के ऊपर चलते हैं। और पिनोसाइटोसिस हमारी क्या है? सबसे पहले पिनोसाइटोसिस के से पहले क्लिनिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस का। क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज की एक जो सबसे कॉमन एग्जांपल पाकिस्तान में आज भी पाई जाती है, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसमें इसके नाम से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह की पस नहीं होती या एक विस्कस टेपरिस वाला फ्लूइड, उसके लिए हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज में पस का वर्ड यूज किया जाता है। तो ऐसी डिजीजेस जिनके अंदर काफी ढेर सारी, थोड़ी सी नहीं ढेर सारी, लीटर्स के हिसाब से ऑर्गन्स के अंदर पस इकट्ठी हो जाती है, उनको हम कहते हैं, कैटेगराइज करते हैं एज क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस, जिसकी सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल हमारे पास टीबी की है। अब दिस इज वन ऑफ द pathway is due to defective phagocytosis and respiratory bust. Characteristics of disease, it is characterized as a recurrent infection. इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट 6 months से लेकर 1 year तक दी जाती है, और अगर इन केस ऑफ रिकरेंस और रेजिस्टेंस इट कैन बी upgraded up till 3 years कि कोई रिकरेंस ना हो सके। Widespread granuloma formation in various tissue like lung, lymph nodes and skin। ठीक है, तो आप लोगों को पता है टीबी भी ज्यादा लंग्स की होती है, मगर lymph nodes की भी होती है, आपकी टीबी बोन भी होती है, टीबी इंटेस्टाइन भी होती है। Defect, mutation in the gene encoding for the 4 polypeptide that constitutes for the NADPH oxidase system। ये इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट है, जो इसका ये जो म्यूटेशनल एस्पेक्ट है, अगर ये जीन डिफेक्टिव है तो क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस हो जाएंगी, मगर एक्वायर्ड भी होती है, एक्वायर्ड जैसे टीबी एक्वायर्ड होती है। Granulomas are formed as attempt to wall off the bacteria that have not been killed due to the genetic deficiency in the NADPH oxidases enzyme। So, जब इनगल्फ कर लेता है आपका फेगोसाइट कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजन जिसको वो डिग्रेड नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ये जो NADPH ऑक्सीडेज सिस्टम है, कि अगर आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा हो, यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा हो, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि ये एक एक्टिव स्पीशीज रिलीज करता है H2O2 या सुपर ऑक्साइड स्पीशीज यहाँ पर रिलीज होती है, और यही ETC इज द पाथवे जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करता है। देयर आर अदर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि हम लोग बाहर से ले सकते हैं, या जैसे ग्लूटामीन हो जाता है, या आपका विटामिन E और E और दी एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, मगर जब आपके फेगोसाइट्स कोई भी पैथोजन इंजेस्ट करते हैं और वो H2O2 यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज नहीं बना सकते, तो क्या होता है कि वो उस पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन या उस पैथोजन का स्ट्रक्चरल ब्रेक नहीं दे सकते। वो होता क्या है कि क्योंकि उसके ढेर सारे प्रोटियोलिटिक और हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज हो चुके होते हैं, तो पैथोजन इनएक्टिव हो गया होता है, मगर वो डिग्रेड नहीं होता। तो ऐसे समझें जैसे कि आपने यू नीड टू स्टेन समथिंग आउट ऑफ अ जाली और अ स्टेनर, छलनी के अंदर से चीजें गुजारनी है, और आप जब तक कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे या एक स्मॉलर साइज में करें, तो आप उस स्टेनर से वो चीजें बाहर निकाल नहीं सकेंगे। ये अदर वे अराउंड क्या होगा, वो सारी जाली के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी एंड जाली विल बी मतलब ओवर टोटली फिल्ड अप। ठीक है,
यही यहाँ पे हो रहा है, ये फेगोसाइट्स सेल्स को इंजेस्ट करते जाते हैं और इकट्ठे करी जाते हैं एंड नॉर्मली दे एंड अप इन फॉर्मेशन ऑफ लीटर्स ऑफ पस। ठीक है, आगे चलते हैं। Penocytosis. Let's talk about the other way around of the endocytosis. It is a property of cell and leads to the cellular uptake of fluids and fluid contents. The fluid phase of penocytosis, it is a non-selective process in which uptake of a solute by formation of small vesicle simply proportionate to the concentration in the surroundings extracellular fluid ECF. मेरे ख्याल से नहीं समझ आएगी ना, फिर से दोबारा। फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस, इसके दो पार्ट होते हैं, एक फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस है, ठीक है, ये वो है जिसके ऊपर कल खपते रहे हम लोग। इट इज अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस, ठीक है, इन विच अपटेक ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है ना। ये सॉल्यूट क्या हो गया, आपका सोडियम हो गया बाय फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वेसिकल्स, यानी ये सोडियम को अंदर लेकर आ रहा है, vesicles in simple proportionate to the concentration in the surrounding extracellular fluid। यानी सेल के अंदर उस वक्त ये सोडियम लेकर आता है जब आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम की वो कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो जब हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई है और फ्लूइड शिफ्ट आना है, फ्लूइड शिफ्ट से पहले साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट आना है, तो जो सोडियम ने अंदर जाना था दैट गोस थ्रू पिनोसाइटोसिस। अमेजिंग ना। द फॉर्मेशन ऑफ दीज वेसिकल्स आर एक्सट्रीमली एक्टिव प्रोसेस, ठीक है जी। सो कल भी हमने डिस्कस किया था कि विद इन मिनट्स आपका बीपी कंट्रोल करना होता है, विद इन मिनट्स डिहाइड्रेशन कंट्रोल करना, सो दिस इज वेरी फास्ट प्रोसेस, राइट। गोइंग अहेड टू दैट, इसकी कुछ टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं और उसके बाद आई गेस यू विल बी डन विद माय लेक्चर, ठीक है। रिसेप्टर मीडिएटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ द पिनोसाइटोसिस, ठीक है, by coated vesicles of endosomes. All eukaryotic cells have transient structures like coated vesicles and endosomes that are involved in transport of macromolecules from exterior cell to the interior। तो पहला टाइप क्या हो गया, रिसेप्टर मीडिएटेड अब्जॉर्प्शन ऑफ पिनोसाइटोसिस। सबसे पहले क्या, एंडोसोमिक हो गया, ठीक है जी। दूसरा, the process of the external surface of plasma membrane are covered with receptors characterized as coated pits, ठीक है जी। जो आपके रिसेप्टर्स है, कोटेड पिट्स वो होते हैं जो कि एंटीजन एंटीबॉडी, जो रिसेप्टर एंड्स होते हैं, जो एक्टिव साइट होते हैं, वो कोटेड पिट्स कहते हैं। The receptor proteins can combine with macromolecules, यानी लाइगेंड बन जाते हैं। यही एक आपका एंटीजन और लाइगेंड बॉडी बन गया। These ligands move naturally into the coated pits and form which of the help of the protein and dynamic the hydrolysis of GTP and our internalized coating vesicles are converted to usually peripheral protein called clathrin। अब ये जो सारा पाथवे है ये आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है जानना, बट इस टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस के अंदर या एंडोसोम्स के अंदर या पिनोसाइटोसिस के अंदर आपके जो दिस इज अ पार्ट ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसके अंदर आपके लाइगेंड और लाइगेंस आके बाइंड करते हैं और ये जो पूरे के पूरे एक्टिव साइट्स हैं वो रोटेट करते हैं, ठीक है। एक अगर एंजाइमोलॉजी आपको याद हो तो एक आपको एंजाइम्स पढ़ाया था जो कि हमने कहा था कि नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम्स थे। उसके अंदर हमने ये बताया था कि जैसे ही एक्टिव साइट के ऊपर आपका सबस्ट्रेट लग जाएगा तो एंजाइम रीमॉडल हो जाएगा, और अगर आपके इनहिबिटर साइट के ऊपर इनहिबिटर लग जाएगा तो एंजाइम की एक्टिव साइट रीमॉडल हो जाएगी, ठीक है। मगर ये कॉम्पिटिटिव नहीं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के दौरान, ठीक है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए दैट टाइप ऑफ एंजाइमोलॉजी और दैट टाइप ऑफ रिसेप्शन इज कॉल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ पिनोसाइटोसिस, ठीक हो गया। The coated vesicle fuse to endosomes
and discharge macromolecules into the interior of endosomes. ठीक हो गया, एंडोसोम साथ लगे होते हैं, उसके अंदर डाल दिया. Low pH breaks the linkage between the receptor molecules with the spontaneous simultaneous release of clathrin. Macromolecules free receptors membrane fragments. Most of the free cycle break into the plasma membrane and replenish the population of the receptors and protectors. ठीक है जी, अब वो दोबारा से वो टूट जाते हैं, वो रिसेप्टर्स को भी अलग दे देते हैं और एक प्रोटीन. इसी मैकेनिज्म के अंदर जो दूसरी चीज आपकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में आती है, दैट कम्स एज मेमोरी, सेल मेमोरी या टी मेमोरी टी सेल्स. यही जो आपके एंटीजन एंटीबॉडी मेमोरी होती है वो आ जाती है इसी को इम्यूनिटी कहते हैं. The macromolecules containing endosomes now move to help macromolecules further integrate the cell and fuse the lysosomes and become associated with vesicles and Golgi apparatus. LDL molecules bound to receptors and internalize genes of portal fats. ठीक हो गया, ये पाथवे इसकी सिर्फ समझने की आपको इतनी को खास जरूरत नहीं, वैसे तो इजी सा है, समझ आई है वही. But one of the types of pinocytosis is receptor mediated absorptive pinocytosis. ये पता होना चाहिए आपको. क्लिनिकल एस्पेक्ट इसका बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर. रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस विद वेरियस responsible for many diseases like hepatitis virus, polio virus, AIDS और iron toxicity occurs. ठीक है, टी सेल्स वाला एड्स मैंने आपको इधर बता दिया, इसका पाथवे बता दिया, पोलियो वायरस का बता दिया, हेपेटाइटिस का बता दिया. ठीक हो गया, दिस इज ऑल अबाउट इट. ओके बेटा, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर ऑफ योर टाइम. थैंक यू सो वेरी मच. अल्लाह हाफिज.